Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. First of all, are there any doubts? Anyone? Any doubts from maths? Yes, sir. I want to say that, Sir, sorry. sir, Harshdeep has Arabic. Beta. Is Harshdeep there in the meeting? Harshdeep, Yes, sir, she is in. बेटा आपको doubts हैं? Harshdeep, do you have any doubt? So, can you again explain the short chapter probability? Sorry? Explain. What do I have to explain? For the chapter probability. The voice is breaking, Sarah. I'm not able to get what you are saying. So, is my voice is disconnecting or something else? Yes. Now, sir, your voice is coming. Now tell me, what are you asking? Yes, Sarah. No voice. Her photo is please. Beta, all of you, please start your videos. Everyone. Okay, sir. And sir, also Harshdeep has doubted in properties of parallel lines. That's the chapter also. So that time she is asking me. No? It is not speaking. Harshdeep, are you there in the meeting? Do you have any doubts? Harshdeep. So can you again explain the chapter probability? You want me to explain the chapter probability? Yes, sir. Okay, wait. Sir, I am taking off online classes after so many days. So, sir, I'm like feeling sir, the problem is happening with my network in camera. Okay. चलो बेटा शुरू करते हैं. Probability. Sarah is having doubt in probability. ठीक है, मैं probability को थोड़ा जल्दी से बताता हूँ. The terms related to probability, first of all, the first term that is related to probability is experiment. Experiment is any action which has possibility of two or more outcomes. ठीक है, that is experiment. क्या कोई भी ऐसा काम जिसमें दो या दो से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल हों उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. सिंपल सी बात है. Okay. उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ओनली मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ. दैट द फर्स्ट वन इज, मान लीजिए आपने एक फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन. सेकंड इज थ्रोइंग अ डाई. डाई जानते हैं, लूडो वाले जो डाई होते हैं. Dice. Yeah.
प्लूरल फॉर्म में डाइस बुलाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में डाई बुलाते हैं. So that is another example. Now when you toss a coin, you have two possibilities, या तो head या tail, कुछ भी हो सकता है आंसर, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है. So that is the experiment. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. सेकंड है आपका, मैंने बताया था थ्रोइंग ऑफ अ डाई. व्हेन यू थ्रो अ डाई, उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1 Sir, से are लेकर they 6 writing तक. something No, on I'm the not not screen? not not writing anything. Okay, sir. ठीक है. So these are some examples of experiments. Now experiments से related कुछ events भी होते हैं. Events क्या होते हैं? कोई भी पर्टिकुलर आपने इवेंट डिफाइन किया. फॉर एग्जांपल व्हेन वी थ्रो अ डाई, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स. कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, सबको पता है. इन 6 में से अगर मैं कुछ आउटकम्स को सेलेक्ट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट. मान लीजिए मैंने ये बोला कि गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक इवेंट को डिफाइन करा, इवेंट को डिफाइन करा विच इज इवन नंबर. तो इवन नंबर्स वाले जो आउटकम्स हैं 2 4 एंड 6, ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे. हो गए सेलेक्ट. कौन कौन से? 2 4 एंड 6. तो टोटल आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स को सेलेक्ट करना, दैट इज नोन एज एन इवेंट. वो एक इवेंट होगा. ठीक है. सो नाउ प्रोबेबिलिटी अब आती है. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दैट द नंबर ऑफ आउटकम्स रिलेटेड टू द इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स रिलेटेड टू द इवेंट. कितने आउटकम्स रिलेटेड है इस इवेंट से रिलेटेड? कितने आउटकम्स हैं? 3 हैं. ये कितने हैं? 13. दीज आर 3 आउटकम्स. ठीक है. सो नंबर ऑफ आउटकम्स रिलेटेड टू द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये टोटल आउटकम्स कितने हैं? दीज आर 6. ये 6 हैं. Sir, So divided by total number of outcomes, 3 upon 6. This is the answer. This is the probability of getting an even number when you throw a die. So this is the sir, basic what of about probability. random experiment? Random experiment and experiment is the same thing. Random experiment बस वो है जहाँ पर आप आउटपुट, जो भी रिजल्ट है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट इज समथिंग सिमिलर ओनली. बस एक्सपेरिमेंट वो इसलिए बोलते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए बोलते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटपुट. चाहे आप उस पर एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी कंडक्ट करें, हर बार अलग अलग आउटकम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग ऑफ अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन. तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में. एक्सपेरिमेंट वो हुआ जहां पर आपको अगर पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, वैसे तो उसके आउटकम्स मोर देन वन है, या टू से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने एक पैटर्न फॉलो कर लिया कि अगर मुझे ऐसा करना है तो ऐसा ही होगा. समझ में आ गया? बार बार उस चीज को रिपीट करने के बाद आपको पता चल गया कि अगर मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा तो आगे जाके ऐसा होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल साइंस एक्सपेरिमेंट्स में जैसा होता है. तो So your voice is not coming. ऐसे एक्सपेरिमेंट जहां पर अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, वहां पर अगर आप सेम चीज को, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे हर बार, तो आप आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और ऐसे एक्सपेरिमेंट जहां पर आप चाहें कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन आउटकम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा. ठीक है. बस यही. तो हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब कुछ, ऑल दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. So this is the basic of probability. Now there are questions given in your
book in the exercise? Do you have any doubts from the questions which are there in the book? No, sir. No doubts. Okay. Anyone else? Is there any doubt? From anywhere? Sorry? No, sir, everything is clear. Zara, your voice is not clear. Sir, I have a doubt. You have a doubt? Yes. Yes, what is the doubt? Sir, in chapter, sir, last chapter, Which chapter? sir, probability, sir, last chapter. Probability. Huh. Sir, exercise 23, question number 3. Exercise 23, question number 3. Sir, Okay, let me open it. Just a minute. What is the page number? sir, 283. 283. Yes. Question 3. A die is thrown 100 times and the outcomes are noted as given below. When a dice is thrown at random, what is the probability of getting 3? तो हमें ये जो टेबल गिवन है इसके बेसिस पे आंसर करना है अपने क्वेश्चन को. ठीक है, वैसे तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी. If there is no data given, if the data is given in the question, अब देखिए कॉइन, ये सॉरी जो डाइस है इसको 100 टाइम्स टॉस किया एंड आउट ऑफ दीज 100 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग 3 एज द आउटकम. बताओ, टेबल में पढ़ के बताइए. रीड द टेबल एंड टेल मी. आउट ऑफ 100 टाइम्स कितनी बार हमको 3 आउटकम मिला? So 18. 18 times. Who was asking the question? Sir, I. Hi, नाम बोलो बेटा. So, Muhammad Talib. मोहम्मद तालिब. So 3 जो आउटकम आया वो 18 टाइम्स आया, तो ये 18 टाइम्स हो गया फेवरेबल आउटकम्स. एंड कितनी टाइम्स टॉस किया था एक्सपेरिमेंट को, कितनी बार किया था? 100 टाइम्स किया था. तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने एक्सपेरिमेंट किया दैट इज 100. तो 18/100 इज द आंसर. फर्स्ट पार्ट. Okay, sir. सिमिलरली सेकेंड पार्ट, 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है. So 6 आया 9 times out of 100, so 6 की probability हो गई 9/100. 4 आया है 15 times, 4 की हो गई 15/100. 1 कितनी बार आया? 121 times आया. 1/100. 21/100. This is the answer. Okay, sir. Okay. Okay, thank you, sir. Okay. So I am giving you because anyone else? Any other doubt? मैं इसके बाद एक MCQ वर्कशीट दूंगा if you don't have any doubt. I am giving you an MCQ worksheet for your practice for the coming half yearly exams. May I give? Okay, sir. Yes. I'm going to share the screen now. Yes, sir. Okay, sharing the screen, the worksheet. Yeah. Can you all see it on your screen? Yes, No, sir. sir. Yes, sir. जिनका नहीं आया वो लोग अपना वीडियो ऑफ कर लो. Yes, sir. थोड़ा Yes, sir. नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आ गया होगा. Okay, so yeah, start doing the worksheet. I'm giving you only 10 minutes to do the worksheet. It is a very small and it is an MCQ worksheet. तो पूरा तो आपको सॉल्व नहीं करना, बस सिंपल आपको आंसर से टिक करना है. So I think not more than 10 minutes you will take. After 10 minutes we will discuss the worksheet.
Okay, start doing.
Okay, have you all completed the worksheet? Yes, sir. Beta videos on the phone. Yes, sir, completed now. All of you. Yes, sir, I've completed. So, excuse me, sir. So I got disconnected. So, Okay, all of you. Let's so start. I have a doubt in. So I have a doubt in a question. कोई बात नहीं, we are discussing all the questions. 5 added to -5 gives. Tell the answer, all of you. So C1. See, 0. Sir, 5 और -5 को add करेंगे, we get 0. Okay. 3 taken away from 0. Taken away का मतलब क्या होता है? What is the meaning of taken away? like some reducing. Minus 0 minus 3 कितना होगा? -3. Answer option -3. Answer is -3. Smallest integer is, बताओ. Smallest integer So कौन we सा है? cannot write. So we cannot write. Excellent. We cannot -1. write. Smallest integer we cannot write. -1. -1 से छोटे integer नहीं होते. -2, -3, -5,000 or -10,000. -1000. Can you write We a cannot integer? Can you write an integer which is smaller than -10,000? कोई बच्चा बता सकता है? Any integer which is Yes, sir. Minus Yes. 1 crore. सर -1 -1 crore. Yes, correct. सर उससे भी ज्यादा ऐसे हो हम सकता है। कितने भी लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है. We can write as So many minus integers. 1 billion, minus 1 So that means the smallest integer we cannot write. वो क्या कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा. और इन्फिनिटी तो ऐसी चीज होती है जो हम लिख ही नहीं So सकते. that is infinite. Okay. Yes, sir. So which of the following, next question, इसका आंसर क्या हो गया? We cannot write. थर्ड वाले का. ठीक है. Next question 4. Which of the following statement is true? कौन सा true है? So बताओ. C1. 3. C1 is true. 3 subtracted from -8. -8 में से 3 माइनस कर लो. 3 subtracted from -8. -8 में से 3 माइनस करिए, क्या आएगा? -11. दोनों नेगेटिव है यानी कि ऐड हो जाएंगे. -11 is the answer. So that means the third one is correct. ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे. इनको निकाल के देख लेंगे आप. You will see that all the 3 are false. Absolute value of -11. -11 की absolute value. Absolute value का मतलब होता है कि नंबर अगर नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव है या द वैल्यू विदाउट इट्स साइन. दैट मीन्स अगर नेगेटिव है तो भी आप पॉजिटिव बना देंगे उसको विदाउट एनी साइन, एंड अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा. दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू. सो आंसर इज 11. द नंबर 3 लेस देन -2. बताओ. 3 लेस देन -2. So 3 less than -2. हाँ जी. Sir, -5. Sir, it is -5. 3 लेस देन -2. -2 में से 3 लेस करो. लेस करने का मतलब क्या होता है? What is the meaning of less? लेस करना मतलब? D. I mean D. Sir, it is D. नहीं, लेस minus करने का मतलब, बेटा लेस करने का मतलब तो बताओ पहले मुझे.
सर इसको subtract लेस करना यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। 2 -2 में से 3 लेस करेंगे यानी कि -3 करना। -5 -2 -3 कितना हो गया? -5 हो गया। आंसर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, बताओ ये आंसर बताओ। Which of the following numbers is minus Sir, this is the -3? sir, this is the seventh one. जो भी है, Sir, this whichever, is the जो भी है, yes, whatever. sir. Sir, this is yes sir B. 7th Which of है the sir which of the following numbers is to the right of -3? राइट साइड में कौन से नंबर होते हैं? राइट साइड में कौन से नंबर होते हैं? बड़ा नंबर मिलता है राइट में या छोटा नंबर मिलता है राइट में? So बड़ा. बड़ा नंबर बड़ा। मिलता है। सो माइनस विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ग्रेटर देन -3? बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा नंबर -3 से बड़ा है? सर माइनस So -2. 2 इज ग्रेटर, ठीक है। -2 इज ग्रेटर देन -3, तो वो राइट में मिलेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ -10? -10 के A. Sir, -9. -9 -11 लेफ्ट में है, -12 भी लेफ्ट में होगा क्योंकि ये छोटे हैं, -13 भी लेफ्ट में होगा क्योंकि ये भी छोटा है। तो द करेक्ट आंसर इज -9 बिकॉज ये -10 से बड़ा है, तो ये लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? So this is on the right side. This will be on the right side of -10. Right. Sir, I have doubt Sir, right in side. the next one. In the next Sir, question, right you have a doubt. Yes. The number of integers between -2 and 2. -2 और 2 के बीच में integers कौन कौन से होते हैं? ये रहा -2, इसके बाद -1, इसके बाद 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2। -2 and 2 के बीच में कितने integers हैं आपको? 3 integers. कौन से? -1, 0 and 1. Answer is 3. Any doubt? Sir, while counting. No, sir. Sir, I think that I have to, sir, just find the number. इनके बीच में कितने इंटीजर हैं बेटा? 3 है, -1, 0 and 1। ये 3 इंटीजर्स हैं -2 और 2 के बीच में, ठीक है। आंसर इज 3। सर आई थिंक सो दैट हाँ, Sir, we are thinking that we have to write any number in between from that. यस। द अपोजिट ऑफ -7, -7 का अपोजिट। Sir, 7. Sir, 7. 7 Sum of two negative integers is always Sir, a negative integer. negative। अभी हमने कई बार करा, अभी करा था। नेगेटिव Sir, negative plus negative is equal to नेगेटिव प्लस positive. नेगेटिव पॉजिटिव होता है। मेरी Sir, बात but if we are, sir, if नेगेटिव it is हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं यहाँ पर, सम। yes, sir. हम प्रोडक्ट थोड़ी कर रहे हैं। दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, Sir, I have सम written. थोड़ी पॉजिटिव होता है। सम नेगेटिव ही मिलेगा आपको। -2 फॉर एग्जांपल, -2 प्लस -3, ये दो नेगेटिव इंटीजर्स को मैं क्या कर रहा हूँ? सम कर रहा हूँ, यानी कि ऐड कर रहा हूँ। Sir, ब्रैकेट ओपन होगा पहले तो, -2 और प्लस इंटू माइनस बन जाएगा -3। -2 -3 कितना आया? -5। बताइए नेगेटिव आंसर आया या पॉजिटिव आया? नेगेटिव आंसर आया ना। मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं जो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम -2 को -3 से मल्टीप्लाई करते तब आंसर पॉजिटिव हो जाता, 6 हो जाता। यहाँ पर हमें क्या करना है? सम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When we do plus, then it will come negative. The next question, the sum of -30 and -12, जल्दी बता दो। -42. Sir, -42. Sir, -42. In addition and subtraction of integers, the sign of answer depends upon greater numerical Sir, value. D. Sir, D is the greater numerical value. Sum of -14 and 9. Sir, -5. -14 और 9 को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। Have you understood all the questions? Any doubt in any question? Yes, sir. No, sir. No, sir. No doubt. Very nice. No, चलिए sir. ठीक है, let's end the class. Thank you, sir. all of you. Bye, Bye, sir. sir. Bye bye. Thank you. Same to you. Bye, sir. Have a nice day. Thank you.